السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کوکر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ کراچی میں موسلا دھار بارش کے باعث شہر پانی پانی ہو گیا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، گاڑیاں بھی ڈوب گئیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے کم یونیورسٹی روڈ پر 5.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ کراچی میں پھر بادلوں کی انٹری، کالی گھٹائیں برسیں تو شہر پانی پانی ہو گیا۔ بارش کے بعد موسم میں تو تبدیلی آئی، لیکن سڑکیں بھی تالاب میں تبدیل ہو گئیں، کئی گاڑیاں بھی ڈوب گئیں۔ شہریوں کو پانی میں بند موٹر سائیکلوں کو دھکے لگا کر منزل پر پہنچنا پڑا، گاڑیوں کو بھی پانی میں ہی بریک لگ گئی۔ ناگن چورنگی، نارتھ ناظم آباد، سرجانی روڈ سمیت دیگر شاہراہوں پر اب بھی کئی فٹ پانی جمع ہے۔ شہریوں کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیہ نے بھی یہاں کے باسیوں کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ بادلوں کی گرج چمک کے بعد شاہراہ عثمان پر حیدری مارکیٹ اور شادمان ٹاؤن کا برساتی نعرہ ابل پڑا۔ 4 کے چورنگی سے 2 منٹ چورنگی تک سڑک زیر آب آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ فیصل بیج 36 اور ناظم آباد 18 ملی میٹر بارش ہوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی، میرپور خاص، تھرپارکر، ٹھٹھا، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، دادو اور عمرکوٹ سمیت دیگر علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ شہر قائد میں بارش تھمنے کے بعد کئی اہم شاہراہیں تالاب میں تبدیل ہو گئیں۔ جن علاقوں میں ایڈمنسٹریٹر کراچی دورہ کر رہے ہیں وہاں پانی کی نکاسی جاری ہے۔ شہزادہ معین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہزادہ معین۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں ناگن چورنگی پر، اور یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے مرتضی وہاب نے دورہ کیا اور انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ یہاں پر مکمل طور پر اب صفائی کر دی گئی ہے نالوں کی، اور یہاں پر جو ہے برسات کا جو پانی ہے وہ بالکل صاف کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت بھی میرا کیمرہ مین سراج دکھائے تو اس وقت بھی یہاں پر جو ہے پانی موجود ہے، اور یہاں پر جو ٹریفک ہے اس کو آنے اور جانے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب سے کچھ دیر پہلے جو مرتضی وہاب نے کہا کہ یہاں مکمل طور پر صفائی کر دی گئی ہے، پانی یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں ناگن چورنگی سے براہ راست کہ یہاں پر اس وقت پانی موجود ہے۔ زیادہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ موٹر سائیکل بند ہوتی ہوئی بھی نظر آ رحی ہے، رکشہ بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مختلف جو۔ بہت شکریہ شہزادہ معین۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے شاہراہ فیصل کا دورہ کیا اور ویڈیو جاری کر دی۔ سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے خرم شیر زمان نے کہا آدھے گھنٹے کی بارش نے کراچی کی حالت بری کر دی ہے۔ شاہراہ فیصل میں بارش کے پانی سے مین شاہراہ مکمل ڈوب چکی، بچے تیر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہاں ہے شہر کے ایڈمنسٹریٹر، وزیر بلدیات اور وزیر اعلیٰ؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے تنقید کرنے والوں کو آئینہ دکھایا۔ ناگن چورنگی کے دورے کے موقع پر مرتضی وہاب نے کہا گرین لائن اسٹرکچر بارش کے پانی کے لیے رکاوٹ بنا، نکاسی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے بڑی باکس ڈرین ڈالنی پڑے گی۔ 10 روز پہلے کریڈٹ لینے والے اس وقت غائب ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے تنقید کرنے والوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ناگن چورنگی کے دورے کے موقع پر گرین لائن اسٹرکچر بارشی پانی کے لیے رکاوٹ بنا، نکاسی کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے بڑی باکس ڈرین ڈالنی پڑے گی۔ 10 روز پہلے کریڈٹ لینے والے اس وقت غائب ہیں۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں بڑے مافیاز قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ مافیا کہتا ہے ہمیں NRO دے دو، کچھ اربوں روپے کی جائیداد بنا کر باہر بیٹھے ہیں۔ دنیا میں اشیاء کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھیں جتنی ایک سال میں بڑھ گئیں۔ ناانصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہیں بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے اوپر ہیں، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے۔ تو وہ جب تک وہ یہ بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں NRO دے دو اور باقی غریبوں کو پکڑو، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے
जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा इमरान खान सर्टिफाइड चोर हैं, लोगों को चोर कहते कहते अपनी चोरी नहीं छुपा सकते। उन्होंने खुद कहा था पेट्रोल आटा बिजली महंगी हो तो वजीर आजम चोर होता है। अवामी फैसलों को पांव तले रोनने वालों के आगे दीवार बनाने तक इंतखाबी इस्लाहात का कोई फायदा नहीं। इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है तो उन्होंने पिछले 5-7 साल में जो भी किया है वो उनके अपने आगे आया है। जब डीजल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, दूसरों को चोर 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 कहते थे। उनकी अपनी कलई जो है पूरी कौम के सामने खुल गई है। जब टेन्योर ख़त्म होने लगता है तो बहुत चीज़ें जो हैं वो अय्याह होने लगती हैं, आपकी ताकत जो है वो ख़त्म होने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। बहाना नहीं चलेगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। जहाँ से धांधली का जो पैदाइश है, जब तक उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा तब तक आप जितनी मर्जी इस्लाहात कर लें उनका कोई फ़ायदा नहीं। मरियम नवाज ने पहली एक्सटेंशन देने वाली नून लीग से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा पहली एक्सटेंशन देने वाली नून लीग में शामिल थी और ना इस गुनाह में शमूलियत इख्तियार की। इंतखाबात के बाद होने वाले तनाज़ात जमहूरियत के लिए नुकसानदेह रहे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा हमने क़िबला दुरुस्त न किया तो आइंदा इंतखाबात भी मुतनाज़ होंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए EVM जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। शिबली फराज का कहना था अपोजिशन को दावत दी लेकिन मुखालिफत बराए मुखालिफत जारी है। लंदन बैठे नवाज शरीफ को लाहौर में कोरोना वैक्सीन लग गई। फ्रॉड सामने आ गया। NCOC के रिकॉर्ड में कायद नून लीग को 22 सितंबर को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन की एंट्री पर ड्यूटी पर मौजूद अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन का गलत इंदराज के वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन के गलत इंदराज का नोटिस देते हुए सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट मांग ली और जामे तहकीकात का हुक्म दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने IMF की रजामंदी के बाद कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ECC में 50,000 टन चीनी की दरामद और 40,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 11 अरब रुपए मंजूर किए गए। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मिल्लत तशय्युई के बुजुर्ग उलमाए कराम का कहना है वतन अजीज से वफादारी हमारे खून में शामिल है। हमने पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत का अहद कर रखा है जिसे हर हाल में निभाएंगे, लेकिन आज़ादारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिया है, इसके खिलाफ वर्जी करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ मकतब तशय्युई और तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के सिलसिले में मुनक़दा उलमा व ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से आए उलमा व अज़ाम का कहना था कि मकतब तशय्युई के खिलाफ गैर आइनी इक़दामात वतन अजीज़ की सालमियत के खिलाफ गहरी साजिश है जिनको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अपने खिताब में अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना था तकफीरी सोच फिर से मुनज़्ज़म हो रही है जिसे रोकने के लिए इदारे इक़दामात उठाएं। अब आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। छोटे मोटे मसले मसाइल हमारे लिए अहमियत नहीं रखते। हमारे लिए सबसे अहम कौमी वहदत है और वो उलमा ही दे सकते और कोई नहीं दे सकता। शेख मोहसिन अली नजफी ने कहा आज़ादारी के रास्ते में हाइल तमाम रुकावटें और साजिशें नाकाबिल कबूल हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी का कहना था 4 दीवारी के अंदर इबादत और मजहबी रसूमात पर पाबंदी आईन पाकिस्तान और बुनियादी शहरी हकूक की पामाली है। आईन कानून की रोशनी में हमें हक है इस बात का। यहाँ फिर और मसाइल आ जाएंगे, रैलियां निकलवाई गई ताकि झुकाया जाए और वो कानून साजी की जाए। इन रैलियों से इन हरबों से किसी मकतब को झुकाना मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी है और गलत अंदाज है। उलमा कराम का कहना था कि मुतासबाना पॉलिसी की बुनियाद पर अज़ादारों के खिलाफ 4th शेड्यूल समेत दीगर झूठे मुकदमात फिलफौर वापस लिए जाएं। पैगाम पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस थी, उसने बड़े जोरदार अल्फाज से कहा कि जो कहते हैं अली उन्विल्ला दहशत गर्दी है वो कहने वाले खुद दहशत गर्द हैं। हमारे मुल्क की मुश्किल
कानून साजी नहीं है, कानून पे अमल दरामद कराना है। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनकी हिकमत से मिलती है कि जिस हक बात को रोका जाए उसे कसरत के साथ अंजाम दिया जाए। मकतबे तशय्यो को आलमी उस एजेंडे के तहत, आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के तहत आइसोलेट करने की और दीवार से लगाने की मुसलसल कोशिश हो रही है। मुल्क भर के नामुर उलमा ज़ाकिरीन ने कहा, सिंगल नेशनल कुरिकुलम अच्छा इकदाम है, ताम मुक़द्दस हस्तियों को निकालना तशवीशनाक है। हज पॉलिसी के नताइज सामने हैं, ज़ायरीन पॉलिसी नाकाबिले अमल है। कैमरामैन रजा मेहदी और हसन नकवी के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं, रियासत ने बहुत से ऐसे लोगों को ठीक कर दिया है, खुद को बहुत कुछ समझते थे। रियासत दांतों के बगैर नहीं, उसके मुक्के भी हैं और दांत भी। जबरी मजहबी तब्दीली का कानूनी मुसवदा काबिल कबूल नहीं। मुल्क में कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुतसादिम नहीं बन सकता। ऑन शिराजी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी की जेर सदारत पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई। अपने खिताब में वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत और रियासत से उलमाए किराम ने काफी शिकवे शिकायत किए। मसाइल और मुश्किलात जरूर मौजूद हैं, उनका एतराफ करने में कोई आर नहीं। जिन बातों का यहाँ पे आदा किया गया और ख़ासकर हुकूमत और रियासत से शिकवे शिकायत हुई, मैं अगर उसके जवाबात दे दूँ तो फिर तलखी बढ़ जाएगी और इस महफिल का माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन बहरहाल कुछ मसाइल और मुश्किलात ज़रूर हैं जिसका मुझे एतराफ़ करने में कोई आर महसूस नहीं होता। पीर नूरुल हक कादरी का मजीद कहना था कि वजारत इंसानी हकूक ने जबरी मजहब की तब्दीली का बिल भिजवाया था। पंजाब, GB, KP और बलोचिस्तान में जबरी मजहब तब्दीली का कोई केस नहीं। सिंध में चंद केसेस को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के वाक़यात है जिसको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये जबरी मजहब की तब्दीली है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी बराए मशक़ वस्ता ताहिर अशरफी का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक बंद बांधा है। हमारे पास इस पैगाम पाकिस्तान पर उनके भी दस्तखत मौजूद हैं जो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। ये पैगाम पाकिस्तान की सूरत में एक ऐसी दस्तावेज हमारे पास है कि जिसपे सबके दस्तखत है, उनके भी हैं जो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। बदकिस्मती ये है, तो इस पे दस्तखत तो करते हैं लेकिन फिर इसकी खिलाफ वर्जी भी करते हैं। इस मौके पर चेयरमैन IK ट्रस्ट इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान एक बेहतरीन दस्तावेज है, इसके खिलाफ जो इकदाम उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पैगाम पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान के बाद बेहतरीन दस्तावेज है, इसे गुम नहीं होना चाहिए। हमें भी चाहिए कि हम ये कॉन्फ्रेंस जो है इसे अपने इदाराजात में भी करें और इसको मजीद तकवीयत दें। और ये एक बेहतरीन दस्तावेज तैयार हुई है करारदाद पाकिस्तान के बाद और इसको गुम नहीं होना चाहिए। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से इलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुस्लिम अपनी हुर्रियत फिक्र पर कोई समझौता ना करे। हमें इसी कुरानी पैगाम पर अमल पैरा होकर अमरीकी, इसराइली और इंडियन तसल्लुत को तस्लीम नहीं करना चाहिए। इस मौका पर उलमा ने अमली यकजाती का मुजाहिरा भी किया। सैयद अउन शिराजी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।